بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اگر آپ لوگ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں امیر ہونا چاہتے ہیں تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا 5 ایسے راز یا 5 ایسی باتیں جن پر آپ لوگ عمل کر کے ایک کامیاب یا امیر ترین شخص والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم کامیاب ہونا چاہیں یا امیر ہونا چاہیں، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہوتا ہے اور یہ منحصر ہوتا ہے ہماری سوچ پر کہ ہماری سوچ کس طرح کی ہے۔ نمبر 1، سلیکشن آف بیسٹ، یعنی بہترین کا انتخاب۔ دیکھیں، اگر آپ فری ہیں، آپ کے پاس مختلف ایکٹیویٹیز ہیں کرنے کو، تو آپ اس کا انتخاب کریں جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے لیے میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا چلوں۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص کو پیش کیا گیا اور اس شخص کے پاس ایک فن تھا کہ وہ ایک جو سوئی ہوتی ہے اس کے اندر کئی میٹر کے فاصلے سے اس کے اندر جو دھاگا تھا وہ دور سے پھینک کر ڈال سکتا تھا۔ اب اس کا یہ فن بہت ہی زیادہ قابل تعریف تھا۔ جب اس نے بادشاہ کے سامنے یہ اپنا مظاہرہ کیا تو اسے کافی زیادہ داد ملی، ہر طرف سے تالیوں کی جو گونج ہے وہ بلند ہوئی، اور ایز روٹین بادشاہ کی طرف سے اسے 10 دینار بطور انعام جو ہے وہ دیے گئے، اور ساتھ ہی بادشاہ نے اسے 10 کوڑوں کی جو سزا ہے وہ کوڑے مارنے کی بھی اسے جو ہے وہ آگے وزیر کو حکم دیا۔ اب جب اسے 10 دینار بھی ملے اور 10 کوڑے اسے بطور سزا بھی ملے تو اس نے بادشاہ سے یہ سوال ڈرتے ڈرتے کر دیا کہ بادشاہ حضور، مجھے کیا اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کہ مجھے 10 جو دینار انعام دیا ہے ساتھ اس کے مجھے کوڑے بطور سزا کیوں مارے گئے ہیں؟ تو وہاں پر بادشاہ نے ایک بڑے جو کام کی بات کی تھی وہ یہ تھی کہ انعام تو میں نے تمہارے اس ہنر پر یا تمہارے اس فن پر دیا ہے، واقعی تم نے بہت محنت کی ہے جو تم سوئی کے اندر اتنے دور سے دھاگا ڈال سکتی ہو، اور جو سزا تمہیں میں 10 کوڑے دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تم نے محنت اس ہنر کو سیکھنے میں کی ہے، اگر اتنا ہی ٹائم دے کر تم کوئی اچھا ہنر سیکھ لیتے تو وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر تھا۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہم نے کرنا ہوتا ہے بہترین کا انتخاب۔ ہمارے پاس آپشن موجود ہیں کہ ہم فری وقت کو، جیسے آج کل کے نوجوان کھیل کود کر ضائع کر رہے ہیں، مختلف فضول ایکٹیویٹیز ہم کر کے ضائع کر رہے ہیں، سیر و تفریح میں ضائع کر رہے ہیں، مختلف ٹی وی ڈرامہ سیریل دیکھ کر ہم گزار رہے ہیں، یا اور بہت سے جو فضول کام ہیں ان میں ہم گزار رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس متبادل یہ آپشن موجود ہے کہ ہم کوئی ہنر سیکھ سکتے ہیں، کوئی کام کی بات سیکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی اس جو ہمارا وقت ہے اس کو بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، والدین کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی آف پیرنٹس، کہ وہ والدین اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے ان کی رہنمائی کریں کہ آپ لوگوں نے عملی زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے، یا اگر ہم پیسے کے حوالے سے بات کریں تو پیسہ کمانے کے طریقے کون کون سے ہیں، نہ کہ والدین کو یہ چاہیے کہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو صرف تعلیم دلوانے کے چکر میں پڑے رہیں۔ آج کل جو والدین ہیں ہماری پہلی پریورٹی یہی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ BA کرے، MA کرے، MSc کرے، MPhil PhD کرے، لیکن یہ نہیں بتانا کہ بیٹا آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انکم کیسے کرنی ہے۔ ایک بہت ہی بہترین مثال میرے پاس یہاں لوکل سطح پر موجود ہے۔ میرے ایک عزیز اور بہت ہی قریبی دوست مدثر یوسف پاشا صاحب ہیں، جو چوکی سے بلانگ کرتے ہیں، ایک پرائیویٹ ادارہ چلا بھی رہے ہیں۔
2-3 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, तो एक बच्चे की स्टोरी सुनाते हैं, मुझे बड़ी इंस्पिरेशनल लगी है, और ख़ासकर उसमें जो वालिद का किरदार था वो भी, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे शेयर करता चलूँ। वो बताते हैं कि एक बच्चा जो पठान फैमिली से तल्लुक़ रखता था, वो उसका जो टाइम टेबल था, सुबह भी स्कूल में ताख़ीर से आता था और वापसी पे भी जो है वो 12 बजे वो बाज़िद होता था कि छुट्टी दी जाए। मैंने एक दिन उसके वालिद से शिकायत की कि इस एक बच्चे ने हमारे पूरे स्कूल का जो है वो डिसिप्लिन ख़राब किया हुआ है, सुबह भी ताख़ीर कर रहा है, वापसी में भी जल्दी जाने का कह रहा है, तो इस हवाले से जो है वो आप हमारे साथ ताउन करें। तो वहाँ पे वो मुझे बताते हैं मेरे दोस्त कि वो जो पठान उसका वालिद था, वो कहता है कि जो मेरा बच्चा है वो इससे जल्दी ना ही आ सकता है और ना ही इससे ताख़ीर से मज़ीद वो पढ़ सकता है। उसकी वजह ये है कि मेरा बच्चा सुबह स्कूल आने से पहले तकरीबन 1000 की दिहाड़ी लगा कर आता है, चाहे वो उससे वो प्लास्टिक की बोतलें जनवाता था, कूड़ा जनवाता था, या जो भी जिस किस्म का भी काम है वो सुबह 2-3-4 घंटे काम करवा के 1000 की दिहाड़ लगवा के फिर भेजता था, और वापसी पे भी 12 बजे वो उसकी छुट्टी लेकर या 12:30 छुट्टी लेकर उससे फिर 1500 की दिहाड़ लगवाता था, यानी 2500 बच्चा डेली का कमा रहा है। तो पठान का वहाँ पे वो लॉजिक बतौर वालिद जो उसने दिया कि मेरा ये जो बच्चा है इसने बाद भी मुझे कमा के देने हैं, तो अभी इतने कमा कर दे रहा है तो मेरे हक में तो ये बेहतर है। अब आप कोई बच्चा मुझे बताएं जो आपका स्टूडेंट हो और वो इतने कमा रहा हो। तो वहाँ पे वो मुझे मेरे दोस्त बताते हैं कि मेरे पास तो उसका देने को कोई जवाब नहीं था। तो देखिए, अगर वो बच्चा अभी 2500 या 3000 एक दिन का कमा रहा है तो हमसे तो वो बेहतर है जो डिग्री की तो नुमाइश कर रहे हैं लेकिन सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, दूसरों के हाथों की तरफ देख रहे हैं। तो देखें, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को कैसे उनकी मेंटल ग्रूमिंग करेंगे, या उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, या उनको कैसे हुनर सिखाएंगे। डिग्री को मैं डिवैल्यू नहीं करता, डिग्री भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ हमें अमली ज़िंदगी में कैसे अपने आप को लेकर चलना है वो भी हमें सीखना होगा, और बतौर वालिदैन हमें बच्चों को भी सिखाना होगा। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है मेक इन्वेस्टमेंट और परचेज एसेट्स, यानी असासे बनाएं, असासे खरीदें। देखिए, एक जो हमारी छोटी सी तनख्वाह है वो हमने, बल्कि तनख्वाह लेते हैं तो एक महीने से पहले हमारी वो यूज़ हो जाती है, या हमने वो उसके मुतबादल रास्ते ढूंढे होते हैं कि हमने कहाँ कहाँ खर्च करनी है। तो एक जो तनख्वाह है वो कभी भी आपके लिए सेविंग का सबब नहीं बन सकती है, उससे बड़ा मुश्किल आप खाना ही खा सकते हैं, अपनी रोटी ही कमा सकते हैं। उससे अगर आप चाहें कि सेविंग करें या कोई एसेट बनाएं या घर मकान बनाएं या कोई चीज़ खरीद सकें तो नहायत ही मुश्किल है, बल्कि मैं तो कह लूँ कि नामुमकिन है, तो वो गलत ना होगा। तो हमें चाहिए कि हम जो अपनी है थोड़ी तनख्वाह में से थोड़ा सा जितना भी हो सके उसकी सेविंग करें, उसको इकट्ठा करें और उससे अपने असासे बनाएं, ना कि हम जो है उसे अय्याशी पे खर्च करें। अब देखें, हम अगर उसको सेविंग को लगाना चाहें तो उससे हम 2 तरह की जो है आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम उससे कोई अपनी अय्याशी के लिए एक मकान अच्छा सा बना लें, अच्छी सी गाड़ी ले लें। लेकिन ये भी हमारा पैसे का यूटिलाइजेशन है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो आगे डी वैल्यू होंगी। जैसे अब मकान है तो मकान के ऊपर एक तो हमारा दिन ब दिन का जो है वो खर्चा भी है जो हमने उसके ऊपर करना है, दूसरा ये कि वो हमारा जो है वो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। और ये मकान भी ज़रूरी है, लेकिन ये आप लोग इसकी तरफ तब शिफ्ट हों जब आपके पास बहुत सा पैसा हो या आपके पास ऐसे एहसासी हों जिनसे आपको आमदन आ रही हो। तो हाँ, आप अगर मकान ही बनाना चाहते हैं तो ऐसा इस तरह का बनाएं जिससे आप साथ रेंट पे लगा सकें, जिससे यानी आपको मंथली इनकम आए। या अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसे अय्याशी के लिए ना खरीदें, बल्कि उसे रेंट पे लगा दें, बुकिंग पे लगा दें, यानी जिनसे आपको साथ साथ पैसा आता रहे और जिसको आप यूटिलाइज करते हैं, तब आप एक अमीर शख्स बन सकते हैं या अपने लिए वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं जिसको आप मुस्तकबिल में इस्तेमाल कर सकें। चौथी टिप या राज ये है कि रिच माइंडसेट, अपनी सोच को वसी करें। देखें, अगर हम 50,000 कमा रहे हैं तो हमारा जो दिमाग का लेवल है वो ही 50,000 वाला है। हम कभी भी 1 लाख नहीं कमा सकते जब तक कि हम अपने मेंटल लेवल को वसी ना करें, हम सोच को वसी ना करें। इसके लिए देखें, अगर हम लाख कमाना चाहते हैं तो हमें लाख के लिए उसके ज़राए पैदा करने होंगे। हमें
ऐसे ऐसे डिफरेंट आइडियाज़ लाने पड़ेंगे जिनसे हम अर्निंग ज़्यादा कर सकें। हम वो ज़राए कहाँ से लाएं, देखें, या कैसे हम अपने जो पैसे को यूटिलाइज करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकें। तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। हम किताबें स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से हम टिप्स निकाल सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे आप लोग अच्छे टिप्स निकाल सकते हैं, अच्छे सोर्सेज ढूंढ सकते हैं कि कैसे कमाई कर सकें। अपने आप जो है वो सोर्सेज को यूटिलाइज कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं, आप अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पांचवी और आखिरी टिप या राज जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि अपनी हेजिटेशन को दूर करें, या इसका नॉर्मल बदल ये है कि जो भी पेशा है उसको हकीर ना जानें, यानी किसी भी पेशे को हम छोटा समझकर ना छोड़ें। मैंने कई डिग्री होल्डर देखे हैं जो MA MPhil MSc की डिग्री तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं होता, और अगर उनसे वजह पूछी जाए तो वजह ये बताते हैं कि उनको कोई भी माकूल जो है वो ज़रिए आमदन नहीं मिला। अब माकूल क्या है जी, मैं 2 दिन पहले, बल्कि रात की बात है, कि मुझे मेरे एक अजीज़ हैं, फैमिली मेम्बर ही हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। अब उन्होंने MPhil डिग्री होल्डर हैं वो। मेरे वो अजीज़ मुझे बताते हैं कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की, तंजिया या मजाकतन कहा कि मैं वहाँ पाकिस्तान आकर एक फार्म बनाना चाहता हूँ और पैसे रखना चाहता हूँ, और वही मेरा ज़रिए आमदन होगा, और मैं उससे एक अच्छी कमाई करना चाहता हूँ। तो उसने साथ ही मेरे दोस्त को ये भी कहा कि अब क्योंकि आप तो जॉब की तलाश में हैं, आपके पास डिग्री का एक पेपर है, जबकि मेरे पास डिग्री का पेपर तो नहीं है, तो मेरे लिए वो एक बेहतरीन ज़रिया आमदन होगा। तो उसका बताने का मकसद ये था कि अब ये नहीं कि आपके पास डिग्री है तो डिग्री को आप लेकर उसकी नुमाइश करते रहें, उसे लेकर फिरते रहें। वही बात कि मेरा यहाँ पे बताने का मकसद ये नहीं कि मैं जो एजुकेटेड लोग हैं उनको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, बल्कि ये उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो पेशा है जो जायज़ है, हक हलाल का है, बेशक वो छोटा है या बड़ा है, आप उसको चूज़ कर लें। आप अपनी डिग्री को उसके आड़े ना आने दें, तो वही जो पेशा है वो आपके हक में बेहतर साबित होगा। अपने अंदर से जो है वो इस चीज़ को, हेजिटेशन को ख़त्म करें कि मैं डिग्री होल्डर हूँ, लोग क्या कहेंगे। देखें, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि आप उसका इस्तेमाल गलत ना करें। आप देखें, पैसा कमा के अच्छी जगहों पर भी तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 5 राज मैंने आपको बताए हैं ये आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको ज़रूर मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।